آپ نے شاید ایسٹروناٹس کو اسپیس اسٹیشن میں تیرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہاں گریوٹی نہیں ہے؟ نہیں، وہاں گریوٹی ہے کیونکہ وہ ارتھ کے بہت قریب ہے۔ تو پھر وہ تیر کیوں رہے ہیں؟ اصل میں وہ تیر نہیں رہے۔ حقیقت میں پورا اسپیس اسٹیشن ارتھ کی طرف گر رہا ہے، اور جب ہم گر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ویٹ لیسنس محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ ارتھ کی طرف گر رہا ہے تو پھر وہ زمین سے ٹکراتا کیوں نہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ چلو معلوم کرتے ہیں۔ چلیں، میں ایک بہت اونچی عمارت پر کھڑی ہوتی ہوں۔ یہ اتنی اونچی ہے کہ ایٹماسفیئر سے بھی اوپر ہے۔ یہ مت پوچھیں کہ ہم سانس کیسے لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک گیند بھی ہے، تو چلو اسے پھینک کر دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ کون سی چیز نیچے گرے گی؟ اگر آپ گیند کو اور تیزی سے پھینکیں تو کیا ہوگا؟ کون سی چیز تھوڑا دور جا کر گرے گی؟ لیکن یاد رکھیں، ارتھ کی سطح بھی نیچے کی طرف کرو ہے۔ تو اگر آپ گیند کو اور تیزی سے پھینکیں تو دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ گیند کرو ہے، لیکن چونکہ ارتھ بھی کرو ہے، اس لیے گیند زیادہ اور زیادہ دوری طے کرنے لگتی ہے، اور آخرکار اگر آپ اسے بالکل صحیح سپیڈ سے پھینکیں تو آپ دیکھیں گے کہ گیند تقریباً اسی ریٹ سے کرو ہے جس ریٹ سے ارتھ کرو ہے۔ اور چاہے وہ مکمل طور پر گر رہی ہو، وہ زمین کو مکمل طور پر مس کر دے گی اور واپس اپنی اصل جگہ پر آ جائے گی۔ اور بالکل یہی ہماری اسپیس اسٹیشن کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارا اسپیس اسٹیشن مسلسل ارتھ کی طرف گر رہا ہے، لیکن چونکہ ارتھ کرو ہے اور اس کی سائیڈ ورڈ سپیڈ بہت زیادہ ہے، بالکل اس گیند کی طرح یہ ارتھ کو مس کر رہا ہے۔ اور دیکھیں، اسی لیے اندر کی ہر چیز فری فال میں ہے، اور اسی لیے وہ لوگ خود کو ویٹ لیس محسوس کرتے ہیں۔ لیکن اب اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ جیسے کیا گریوٹی کو نہیں کھینچنا چاہیے؟ آپ کو نیچے اور ارتھ کی طرف گرانا چاہیے، تو پھر گریوٹی کی فورس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس سب کو نیوٹنز لاز اور باقی سب کے ساتھ کیسے سمجھیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ تو اب واپس ارتھ پر آتے ہیں، کچھ جانی پہچانی مثالیں دیکھتے ہیں اور پھر دوبارہ یہاں واپس آئیں گے۔ اور اس ویڈیو کا موضوع انویسٹیگیشن ہونے والا ہے، تو آپ بہت سارے سوالات پوچھیں گے اور اپنا سوچنے والا کیپ پہننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، ارتھ پر واپس آتے ہیں تو ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک کار ایک مکمل گول دائرے میں کانسٹنٹ سپیڈ سے گھوم رہی ہے۔ ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ کیا یہ کار ایکسلریٹ کر رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا، میری پہلی سوچ تو یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ سپیڈ تو ایک جیسی ہے، لیکن پھر مجھے یاد آتا ہے کہ ایکسلریشن تو ویلوسٹی کے بارے میں ہے، اور ویلوسٹی میں صرف میگنیٹیوڈ یعنی سپیڈ ہی نہیں بلکہ ڈائریکشن بھی شامل ہوتی ہے، اور یہاں تو کار کی ڈائریکشن واضح طور پر بدل رہی ہے، ورنہ وہ سیدھی لائن میں چلی جاتی۔ تو اگر ڈائریکشن بدل رہی ہے تو لازمی ہے کہ وہ ایکسلریٹ کر رہی ہے۔ اب اس ایکسلریشن کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہمیں کار کی ڈائریکشن بالکل واضح طور پر جاننی ہوگی۔ تو کار کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کار اس وقت یہاں پر ہے۔ اچھا، میری پہلی سوچ یہ ہے کہ چونکہ کار اس طرح کرو میں جا رہی ہے، شاید ڈائریکشن بھی اسی طرف ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ویلوسٹی ویکٹرز یا کوئی بھی ویکٹرز کرو نہیں ہو سکتے۔ ویکٹرز ہمیشہ سیدھے ہوتے ہیں، سیدھے مارک سے نکلتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ تو ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ بس یہ سوچیں کہ اس وقت کار جس طرف اشارہ کر رہی ہے وہی ڈائریکشن ہے۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے؟ تو اگر آپ کار کے آگے ایک ایرو مارک لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کچھ اس طرح نظر آئے گا، اور یہی اس پوائنٹ پر ویلوسٹی کی ڈائریکشن ہے۔ اسی طرح تھوڑا وقت بعد جب کار یہاں آتی ہے، دیکھیں یہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے، اور اس لیے ویلوسٹی بھی اسی ڈائریکشن میں ہے۔ اب اس کی لمبائی ایک جیسی رہنی چاہیے، کیونکہ سپیڈ کانسٹنٹ ہے تو میگنیٹیوڈ ایک جیسا ہے، لیکن آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن بدل رہی ہے۔ ویسے ویلوسٹی کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات، اگر آپ اس ڈائریکشن کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لائن ہمارے سرکل کو ایک خاص پوائنٹ پر ٹچ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ یہاں ٹچ کر رہی ہے اور یہ لائن یہاں ٹچ کر رہی ہے، ایسی لائنز کو کہتے ہیں ہینڈ۔ اس کے برعکس، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس اس طرح کی لائن ہو تو یہ ٹینجنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹچ نہیں کر رہی بلکہ کرو کو کاٹ رہی ہے۔
हमारे सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काट रही है। तो चूंकि हमारी वेलोसिटी वेक्टर्स टेंजेंट लाइंस की डायरेक्शंस में हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी टेंजेंशियल एक पैथ के साथ। और ये सिर्फ सर्कल्स के लिए नहीं बल्कि किसी भी कर्व के लिए दुरुस्त है। चाहे कार किसी भी रैंडम कर्व में जा रही हो, अगर आप इसके वेलोसिटी वेक्टर्स देखें तो आपको नजर आएगा कि वो टेंजेंशियल हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आम तौर पर वो इस पैथ के टेंजेंट में होगी जिसमें वो जा रहा है। खैर, वापस आते हैं असल बात पर। कार एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल रही है, और इसीलिए न्यूटन्स सेकंड लॉ के मुताबिक हमें पता है कि कार पर लाजमी कोई नेट फोर्स लग रही है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है तो लाजमी कोई नेट फोर्स भी होगी। और ये हमें अगले सवाल तक ले जाती है। अब हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है। चलें एक पॉइंट पर गौर करते हैं। इस जगह कार पर फोर्स की डायरेक्शन क्या है? लाजमी कोई डायरेक्शन होगी, है ना? अगर कार पर कोई फोर्स न लग रही होती तो वो सीधी चली जाती। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद है। तो फिर इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? दोबारा सोचें, आपका क्या ख्याल है? मेरा पहला रिएक्शन यही है कि मुझे नहीं पता, मैं कैसे जानूं कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेकिन हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। चलें किसी भी रैंडम डायरेक्शन से शुरू करते हैं। फर्ज करें फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, शायद वही डायरेक्शन हो जैसे कार की डायरेक्शन है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन। लेकिन फिर हमें फौरन नजर आ जाएगा कि ये दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता, फोर्स और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते तो कार की स्पीड बढ़ जाती। लेकिन कार की स्पीड नहीं बढ़ रही, तो ये भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अच्छा, शायद फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हो। लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता, फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती तो कार की स्पीड कम हो जाती, लेकिन कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। ये भी दुरुस्त नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, अगर वेलोसिटी इस तरह टिल्ट हो जाती तो? अच्छा, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि फोर्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ टिल्ट हुई है ना? यानी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इससे फिर भी कार की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, पहले जितनी नहीं, लेकिन थोड़ी सी जरूर बढ़ेगी। लेकिन ये भी दुरुस्त नहीं हो सकता। ये ऊपर की तरफ थोड़ी सी भी टिल्ट नहीं हो सकती इस तरह। इसी तरह ये इस तरफ भी टिल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अब देखें ये थोड़ी नीचे की तरफ है, तो कार की स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो फिर भी मुमकिन नहीं है। तो फिर वो कौन सा वाहिद तरीका है कि फोर्स ऐसी हो कि ना तो कार की स्पीड कम हो और ना ही ज्यादा हो, फोर्स ना ऊपर की तरफ टिल्ट हो और ना नीचे की तरफ? यानी वाहिद तरीका यह है कि ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। अब ये ना ऊपर की तरफ टिल्ट है और ना नीचे की तरफ, तो ये कार की स्पीड ना बढ़ा सकती है और ना कम कर सकती है। अब कार कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। कमाल है ना? और अगर आप सोच रहे हैं कि क्यों क्यों ये इस तरफ परपेंडिकुलर है और इस तरफ क्यों नहीं, तो हम थोड़ा अंदाजे से देख सकते हैं कि चूंकि कार बाईं तरफ कर्व हो रही है तो ये ज्यादा सही लगता है इसके मुकाबले में, है ना? तो खैर, फोर्स वाकई परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नेट फोर्स वाकई यहाँ वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और ये हर जगह ऐसा ही होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि याद रखें स्पीड एक जैसी रहनी है, तो ये हमेशा ऐसा ही होगा। और अब अगर आप इस फोर्स की डायरेक्शन देखें तो आपको नजर आएगा कि फोर्स हमेशा जा रही है इस दायरे के सेंटर की तरफ, और इसीलिए हम इस फोर्स को एक नाम देते हैं। हम इसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। इसका मतलब है सेंटर की तरफ खींचने वाली फोर्स। फोर्स इस दायरे के सेंटर की तरफ जा रही है। जब मैंने पहली बार सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में सुना था तो मुझे लगा ये कोई नई किस्म की फोर्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कौन सी फोर्स दे रहा है? ये कौन सी फोर्स है? अगर कार रोड पर जा रही है तो ये असल में फ्रिक्शन की फोर्स है। यानी ज़रा सोचें, अगर रोड पर बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, अगर वो बिल्कुल स्लिप हो, तो कार बस फ्रिक्शन के बगैर सीधी फिसल जाएगी, वो ये हरकत नहीं कर पाएगी।
تو सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नई किस्म की फोर्स नहीं है, ये फ्रिक्शन है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किरदार अदा कर रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बस इस फोर्स की डायरेक्शन का इंडिकेटर समझें। जैसे हमारे पास ऊपर की तरफ फोर्स या नीचे की तरफ फोर्स होती है, वैसे ही सेंटर की तरफ फोर्स होती है, यानी सेंट्राइपिटल फोर्स। एक और मिसाल लेते हैं। सोचें एक शख्स है जो रो को इस तरह घुमा रहा है एक बिल्कुल परफेक्ट दायरे में, और फिर से फर्ज करें कि स्पीड कांस्टेंट है। तो फिर यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि सारा सिस्टम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होगी, क्योंकि अभी भी एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन वो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? हम सोच सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है। आप सोच सकते हैं कि इस पॉइंट पर स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा खिंची हुई है, और अब यही टेंशन फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही है। तो मुख्तसर ये कि अगर फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो तो इसका असर स्पीड को बढ़ाना होता है। ये हम पहले देख चुके हैं। अगर नेट फोर्स वेलोसिटी की डायरेक्शन के खिलाफ हो तो इसका असर स्पीड को कम करना होता है। ये भी हम पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हमारे पास एक और चीज़ है जो हम अपने टूल बॉक्स में शामिल कर सकते हैं। अगर फोर्स वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वो कर्व में जाएगी, और वो फोर्स आखिरकार इस कर्व के सेंटर की तरफ हो जाएगी। इसीलिए वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाती है। लेकिन याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार या आपका योयो एक बिल्कुल सर्कुलर पाथ में चलता रहे तो फोर्स को मुसलसल सेंटर की तरफ रहना चाहिए और इसकी ताकत भी एक जैसी रहनी चाहिए। अगर वो दरमियान में बदल जाए तो पैथ भी बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर सोचें, अगर यहाँ स्ट्रिंग अचानक टूट जाए तो क्या होगा? फिर योयो का पैथ क्या होगा? मैं आपको कुछ ऑप्शंस देती हूँ। एक ऑप्शन ये हो सकती है कि योयो सीधा ऐसे ही चला जाए। फिर से हम ग्रेविटी को इग्नोर कर रहे हैं, ग्रेविटी की फिक्र ना करें। या शायद ये ऐसे चला जाए, या शायद चूंकि ये घूम रहा है तो ये बस ऐसे ही घूमता रहे। इन तीनों में से आपको क्या लगता है, कौन सा जवाब है? मेरा भी यही इंस्टिंक्ट है कि ये ऐसे घूम रहा था तो ये घूमता ही रहेगा। लेकिन ज़रा सोचें, कार या योयो क्यों चल रहा है? ये अपनी इनर्शिया की वजह से चल रहा था, फोर्स की वजह से नहीं। याद रखें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, चीज़ें जो हरकत में हों इनका रुझान होता है कि वो हरकत में ही रहें। तो इनमें एक कुदरती टेंडेंसी होती है कि वो सीधा जाएं इनर्शिया की वजह से, लेकिन चूंकि यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स है वही इसे कर्व में ले जाती है। यही सेंट्रीपेटल फोर्स का असर है। अब जब स्ट्रिंग टूट गई तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स खत्म हो गई। तो इनर्शिया की वजह से अब क्या होगा? क्योंकि इसमें इनर्शिया है, ये सीधा चलता रहेगा तो ये वही करेगा। ये योयो का पैथ होगा, जब स्ट्रिंग टूट जाएगी ये सीधा जाएगा। और जाहिर है अगर ग्रेविटी हो तो ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ भी कर्व करेगा। और जाहिर है आम तौर पर चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर फ्रिक्शन के साथ साथ फ़र्ज़ करें यहाँ थ्रस्ट भी है, जैसे कोई रॉकेट बूस्टर लगा हो और यहाँ थ्रस्ट हो, तो यहाँ एक इजाफी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी जो सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है। अब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, लेकिन फिर भी हम इन तीन चीज़ों से इंट्यूटिवली सोच सकते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि थ्रस्ट फोर्स इसे तेज़ करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे कर्व में ले जाएगी तो ये कर्व में जाएगा, लेकिन थोड़ा बड़ा कर्व बनेगा ऐसे। तो इस तरह चाहे चीज़ें जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं, सिर्फ इन तीन चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं फिर भी इंट्यूटिवली अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि कर्व कैसा होगा, स्पीड के साथ क्या होगा और सब कुछ। अच्छा, स्पेस पर जाने से पहले एक आखिरी सवाल, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि जो लोग यहाँ अंदर बैठे हैं, जब कार अचानक लेफ्ट की तरफ मुड़ती है तो वो कुछ इस तरह राइट की तरफ फेंक दिए जाते हैं। सोचे कि ये बंदा कार के अंदर है, ठीक है, मैं बस इसे बाहर दिखा रही हूँ, लेकिन वो बंदा राइट की तरफ फेंक दिया जाएगा अगर वो कार का दरवाज़ा ना हो, या अगर वो खुला हो तो वो वाकई कार से बाहर राइट की तरफ फेंक दिया जाएगा। ऐसा क्यों होता है?
क्या इसका मतलब है कि इस पर कोई बाहर की तरफ फोर्स लग रही है, जिसे हम अक्सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, यानी बाहर की तरफ फोर्स? इसका जवाब है नहीं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स असल में कोई हकीकी फोर्स नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप चीज़ों को कार के अंदर से देख रहे हैं जो टर्न ले रही है। अगर आप चीज़ों को बाहर से देखें तो चलो ऐसा करते हैं। आए चीज़ों को बाहर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बंदा जो आगे की तरफ जा रहा है उसकी कुदरती टेंडेंसी है कि वो सीधा ही जाए, लेकिन कार है जो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से कर्व हो रही है। और अब देखते हैं क्या होता है। अगर इस पर कोई फ्रिक्शन ना हो तो वो सीधा ही जाएगा। कार ही है जो लेफ्ट की तरफ मुड़ती है और नतीजे में देखें वो कार से बाहर नहीं फेंका जाता, वो तो बस अपनी सीधी लाइन वाली वेलोसिटी इनर्शिया की वजह से बरकरार रखता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कार ही है जो इससे दूर कर्व हो रही है। इसीलिए कार के अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे वो बाहर फेंका जा रहा है, तो वो फीलिंग सिर्फ इनर्शिया की वजह से है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब बस आगे एक्सेलरेट करती है तो आप पीछे की तरफ फेंक दिए जाते हैं। वही इनर्शियल पुश, वही इनर्शिया की वजह से आप बाहर की तरफ फेंके जाते हैं, तो कोई सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फोर्स नहीं है। ये कोई हकीकी फोर्स नहीं है। सिर्फ एक ही हकीकी फोर्स है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए आप सीट बेल्ट्स पहनते हैं, ताकि सीट बेल्ट्स और आपके और सीट के दरमियान फ्रिक्शन, ये सब भी आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दें, ताकि आप भी कार के साथ साथ कर्व कर सकें। अच्छा, अब मैं वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हूँ। सैटेलाइट इस तरफ जा रही है, सैटेलाइट इसी तरफ जा रही है, ठीक है? तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? याद रखें, वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा इसके टेंजेंट पर होती है। इस पर जो नेट फोर्स लग रही है, इसकी डायरेक्शन क्या है? देखें, ग्रेविटी ही वाहिद फोर्स है और ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ लग रही है। और आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि ग्रेविटी की फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। लेकिन चूंकि हमारा सैटेलाइट बिल्कुल सही स्पीड पर है कि वो 80 रफ्तार से कर्व है जैसे अर्थ कर्व हो रही है। देखें, ग्रेविटी हमेशा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर रहती है और इसीलिए ग्रेविटी हमेशा सेंट्रीपेटल फोर्स बन जाती है। और चूंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर है, ये सैटेलाइट की स्पीड को बदल नहीं सकती। सैटेलाइट की स्पीड बिल्कुल वैसी ही रहती है। सारी ग्रेविटी इसे कर्व करने में इस्तेमाल हो जाती है और इसीलिए सैटेलाइट एक बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर कर्व में जाता है और वो मुकम्मल तौर पर गिर रहा होता है और अंदर सब लोग वेटलेस होते हैं। क्या ये खूबसूरत नहीं है? यही सब कुछ ऐसे ही होता है। लेकिन जाहिर है आखिरी सवाल ये हो सकता है कि ये सब तभी होगा जब सैटेलाइट के पास बिल्कुल सही स्पीड हो। लेकिन अगर इसके पास थोड़ी ज़्यादा स्पीड हो या थोड़ी कम स्पीड हो तो फिर क्या होता है? क्या वो फिर भी सर्कुलर रहता है? अब क्या होगा? अच्छा, ये सब हम अगली वीडियो में सीखेंगे जब हम ऑर्बिट्स को देखेंगे और ऑर्बिट्स के पैथ को और सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे।